OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve all your problems, queries, complications to make physics easy for you. So we were studying the third chapter, physics third chapter, not of science, third chapter in a physics, and that was gravitation. What we have studied in our previous session, that what is gravitation, right? And many related things from the gravitation. Must watch the video of gravitation. Just go on YouTube, type gravitation, online learning with expert, and study the gravitation. That is very useful video for you. Once you will study the gravitation, you will know further what we are going to discuss now. Though you can study directly this lecture, but it will be more useful for you once you will study the gravitation, the chapter, the first lecture on this particular topic, gravitation, right? फिर भी मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं for those students who are just joining our channel, right? So what is gravitation? Gravitation is a force which acts between two objects. Any object in this universe, if it is having some mass, then it will apply some force on any other object which have mass. Similarly, both objects will apply force on each other. And the whole universe is based on this concept. Sun is applying some force on Earth, Earth is applying some force on Moon, and Earth is applying some force on me too, and I am applying some force on Earth too. Right, so every two objects are applying force on each other, and whosoever the mass is greater, that will try to attract the another object towards itself. This we have studied in our previous session. Right, so what was the formula for gravitation? We derived the formula which was given by Isaac Newton, that F is equal to G m upon r square. Right, means the force between two objects is the product of their masses and the distance between them. Suppose that this is one object, and at some distance r there is another object, so the force between them will be the product of their masses m1 and m2, or m and m, and the distance inversely square r square के inversely proportional होगा, the square of the distance inversely proportional to the square of the distance, right? So this was the formula given by Isaac Newton, which is the gravitational force between two objects. This we have covered in our previous session. So today, let's first of all, we will solve one numerical on the basis of this formula. Suppose that if there is a question given to you, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक? मास ऑफ अर्थ कितना है? अर्थ का मास is 6.4 या 6 into 10 to power 24 kg, राइट? ये हमने मान लिया अर्थ का मास है. एंड मास ऑफ मून is 7.4 into 10 to power 22 kg. If the distance between Earth and Moon is 3.8 into 10 to power 5 kilometer, right? 3.8 into 10 to power 5. Is it visible? Let me write here. 3.8 into 10 to power 5 kilometer, right? ये हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया. Then what will be?
magnitude of force applied by Earth on Moon. This is the question. हमें दिया हुआ है अर्थ का मास, मून का मास और उनके बीच की डिस्टेंस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द मून. अर्थ कितना फोर्स लगाएगी मून पे. सो हियर गिवन दैट अर्थ के मास को हम लिख लेते हैं me, एंड दैट इज 6 into 10 to power 24 kg. मून के मास को लिख लेते हैं mm, और वो कितना दिया हुआ है 7.4 into 10 to power 22 kg, राइट. और डिस्टेंस दोनों के बीच की दी हुई है r, 3 पॉइंट कितनी दी है 3.84 into 10 to power 5 किलोमीटर. तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3.84 into 10 to power 5 into 1000 मीटर, राइट. तो इसको हम लिख सकते हैं 3.84 into 10 to power 5 plus 3 8 मीटर, राइट. ये डिस्टेंस हो गई. अब फार्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल टू जी एम एम, मून का मास, अर्थ का मास अपॉन आर स्क्वायर. जी की वैल्यू हमें मालूम है, जी कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, और इसकी यूनिट क्या होती है जी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट. दिस इज द यूनिट ऑफ जी. सॉल्व कर लेते हैं. F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू 3, ये कितना है 6 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 टू पावर 22 अपॉन आर का स्क्वायर. आर कितना है 3.84 इंटू 10 टू पावर 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर, राइट. नाउ सॉल्व दिस. F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 टू पावर -11 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 22 -11 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू पावर 16, राइट. ये कितना हो जाएगा, 22 से 11 गया, 11 हो गया, 11 24 और 11 34 35. 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 टू पावर 35, और ये ऊपर आ गया तो -16 हो गया अपॉन 3.84 इंटू 3.84, राइट. ये कितना बचेगा यहाँ पे 13, राइट. 13 समथिंग. 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 टू पावर 13 नहीं, 19 बचेगा ना. 35 16 -16 तो 19, राइट. तो अपॉन 3.84 इंटू 3.84, राइट. 3.84
अगर 2 टाइम्स किया जाए तो कितना आएगा? अप्रॉक्स 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7.6 अप्रॉक्स आएगा लगभग। तो हम इसको मान लेते हैं, इससे कैंसिल कर देते हैं। अप्रॉक्स के लिए हम ले रहे हैं, लगभग ले रहे हैं वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, राइट। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये लगभग आ जाएगा 6 जा 6 7 जा 40.02, right, upon 3.84 into 10 to power 19, right। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो लगभग यही वैल्यू हमें मिलेगी। अगर इसे 4 मान लें तो यहाँ 20 हो जाएगा, है ना, 4/3.84, तो लगभग हमें समथिंग 2 into 10 to power 20 के करीब वैल्यू मिलेगी। ये फोर्स जो होगा ये एप्लीकेबल होगा बिटवीन दीज टू। आप इसको एग्जैक्ट निकाल लीजिएगा, हमने अप्रॉक्स मान लिया, ठीक। तो अप्रॉक्स हमारा ये आ रहा है 2 into 10 to power 20। ओके, सो दिस विल बी द फोर्स अप्लाइड बिटवीन मून एंड अर्थ, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। अब और देखते हैं कुछ। ओके, नाउ वी विल try to understand what is the gravitational force due to earth. So our next topic is gravitational force due to earth. So what is this gravitational force due to earth? ये वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज अ फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स every object towards its center, right। ये वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक पार्ट है ये, जो अर्थ लगाती है हर एक ऑब्जेक्ट पे। अब ये ऑब्जेक्ट मून भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, हम सब पे फोर्स लगता है ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, राइट। अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क है ये जानते हैं। ग्रेविटी क्या है? राइट, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ये समझ गए आप, कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ये फोर्स जो लगा रही है वो ऑब्जेक्ट पे, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक। क्या है समझते हैं? एक्सेलरेशन ठीक, एक्सेलरेशन क्या है? ये क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, ठीक, नीचे की तरफ, मान लो यहां से हमने इस पे फोर्स लगाया इस तरफ, अब आगे तो सरफेस है नहीं, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना, फ्री फॉल होगा नीचे की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी जब होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, उसको किसी फोर्स से हमने नहीं फेंका है, वो अपने आप गिर रहा है, ये हम यहां से छोड़ दें तो ये अपने आप नीचे जाएगा, तो इस फॉल को हम कहेंगे फ्री फॉल। इस फॉल में इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा, पर इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यानी अब ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक। ये एक्सेलरेशन जो है ये किस वजह से हो रही है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, है ना। इस वजह से इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ, राइट। सो दिस इज ग्रेविटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? जी से, राइट। इसे हम जी से डिनोट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी of an object, and that is acceleration. So this is the acceleration. इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। इस G और जो ग्रेविटेशनल फोर्स G है उसमें क्या रिलेशन है? लेट्स फाइंड आउट। रिलेशन बिटवीन G ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एंड G ग्रेविटी वाला, राइट। इन दोनों में रिलेशन क्या है ये देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F क्या होता है? G m अपॉन r स्क्वायर, राइट। ये होता है। और ये फोर्स, अब ये जब ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है इस पे कुछ एक्सेलरेशन G लग रहा है, ठीक। तो किस फोर्स से, फोर्स क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। और a यहां पे क्या है? यही ग्रेविटी है ना। यहां पे m क्या है? यही ग्रेविटी G। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। एक्सेलरेशन यही ग्रेविटी तो है, जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो नीचे की तरफ इसको अर्थ खींच रही है इस ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, उस वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज जी। तो ए की जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। क्या है ग्रेविटी को अगर हम डिफाइन करें तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी कैन बी रिटन एज चेंज इन velocity of a free falling object in per second. This is what the gravity, right? Per second उसकी velocity में जो change आ रहा है that is what gravity. So F is equal to mg। यहाँ पे फोर्स क्या हो गया? mg, जो अर्थ लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा? दोनों F को कंपेयर करने पे G m अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mg। So this m will be cancelled out by this m. What will be G? G is equal to mgm upon r square। ये हो जाए G is equal to gm upon r square। This is the relation between gravity and gravitational force। अब ग्रेविटी का हम वैल्यू निकालते हैं। Then we will try to calculate the value of gravity, कि ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड कितना होता है, G का मैग्नीट्यूड क्या होगा। Let us solve this now। Okay, so let's see what will be the magnitude of gravity G। G का मान कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, this we have to calculate। So we know what is the value of G। G is equal to G m अपॉन r स्क्वायर। अब अर्थ के केस में अर्थ का मास कितना होता है? m e लिख लेते हैं, 6 × 10⁻24 kg, राइट।
और अर्थ की रेडियस कितनी है, r, e लिख लेते हैं हम 6.4 इंटू 10⁶, राइट। ये रेडियस पता है हमें और g की वैल्यू भी हमें पता है। g कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। तो अगर ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, देन वी विल गेट द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ g। सो g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई re का होल स्क्वायर 6.4 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻6 प्लस 6 12, राइट। 12 ऊपर गया तो -11 ये हो जाएगा 10⁻25। 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻25 24 ये है, और ये 12 ऊपर गया तो 12 से 11 चला गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻+24 और -12 और -11, -12 ये और -11 ये, तो ये कितना हो गया -23 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। दिस वी विल गेट, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां कितना आ जाएगा 10, सो 6.67 इंटू 60 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, राइट। दिस वी विल गेट, इसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो सॉल्व करने पे ये अप्रॉक्स 10 हो गया और ये भी अप्रॉक्स 1 हो गया। 10 इंटू 1 लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ g. So today we studied about Earth's gravitational force, Earth's gravity, the relation between gravitational force and Earth's gravity, and the magnitude of gravity. We'll continue our class of gravitation in our next session. So hope that you will stay with us, stay tuned, stay safe, have a great time.